वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आवाज शायद मेरे ਨੂੰ ਸਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਮਰ ਭਾਈ ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? अमर मेरे भाई तो सिग्नल इतने नजर घट आना होंगे है। पर मैं ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਸੀ ਆਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਛੱਲਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਉਹ ਬਰੇਲਵੀ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਢੀਂਗੇ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ ਆਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪਏ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਨਾ, ਹਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹ ਬਰੇਲਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਬੀ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕਿਆ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕੌਣ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਅਵੈਸ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੂੰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਣਾ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗੱਲ ਅਮਰ ਭਾਈ, ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਾਓ ਪਹਿਲੇ ਪਿੰਡਾ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿੱਚ ਪੇੜ ਆਈ ਆ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਬਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਹਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਾਫਰ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਾਫਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕਾਫਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ। ਖੈਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਚੱਲੀ ਸਾਡੀ, ਕੋਈ 35 ਮਿੰਟ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਨਾ ਮੰਨਣ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਐਂਡ ਤੇ ਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਕੰਨ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਾਫਰ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹਕੀਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਬੀ ਦਾ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ। ਲੋ ਆਇਤ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਇਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੂਰਤ ਨਿਸਾ ਦੀ, ਕਿ ਬਾਜ਼ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਜ਼ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪੱਕੇ ਕਾਫਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੋ ਦਲੀਲ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ। ਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਦੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਬੀ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਬੀ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਬੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਬੀ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੱਕਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਟਰੂਥ ਸੀਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਕਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਲੈਵਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤਰਿਆਕੁਲ ਕਲੂਬ ਵਾਲਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੈਵਨ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਕਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕਾਫਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਦੀਸ ਲੈਵਨ, ਕਦੇ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਾਫਰ ਤੇ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਮਾਮ ਰਾਗਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਾਫਰ ਤੇ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਕਰ ਲਓ। ਟਾਕ मास्टर साहब जेड़ा ना मुतमिन कौन सी होंदे पे कि नहीं नहीं कोई बंदा मन मुतमिन नहीं भाई उर्दू में बात कहने एक दो तो जाके गिले तितर उत्थे जाके बहंदे ने ते थले के बैठे हां ना दा तेन भी कुछ नहीं। अच्छा हुन सी है गुजरात दे उर्दू बोलदे आ भी ना नहीं थले एक दो तितर बैठे आवे कोई मसला नहीं, बैठा रहे ऐसी जेड़ी गल करने आ डंके दी चोट ते करने आ तो पब्लिकली करने आ। उर्दू में बोले समझ आए ना उनको भी ना। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि वहां पे टाक मास्टर साहब ने ऐलान कर दिया कि आज ये मसला यहाँ पे हल होना चाहिए। बहुत दफा हम आए बाएं शाएं कर चुके हैं और हमें ये शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। आज इसको हल करें। आज यहाँ से मैं इसे तब जाऊंगा जब ये मसला हल होगा। रोज रोज का मुझसे ये नहीं सुना जाता जो ये आप लगे रहते हैं एक दूसरे को जवाब देने के लिए। हम कंफ्यूज हैं सारे कि एक बंदा नबूवत का दावेदार है, नबी है, उसका ना मानने वाला कैसे मुसलमान हो सकता है? यहाँ तो फिर वो नबी नहीं है, तो यहाँ अगर वो नबी है तो फिर ये मुसलमान नहीं है। तो ये क्या बात है कि हम इनको मुसलमान भी कहते हैं और हम ये कहते हैं कि ये मिर्जा साहब के मुनकर भी। तो फिर उन्होंने काफी वहां पे पंचर लगाने की कोशिश की कि इत्माम हुज्जत हो गई, नहीं हुई, कोई तकजीब नहीं करता,
تو وہ نہیں ہے فلاں، ادھر ادھر کے کافی انہوں نے نا لگائے، لیکن ٹاک ماسٹر صاحب اپنی بات پہ کھڑے تھے کہ قرآن پاک تو یہی کہہ رہا ہے کہ جو ایک نبی یا رسول کا انکار کرے گا وہ بندہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے، وہ مسلم، ہم اس کو مسلمان نہیں کہہ سکتے قرآن کی روح سے۔ باقی آپ جس کی مرضی بات لے آئیں، مرزا صاحب کی لے آئیں، خلفاء کی لے آئیں، جو مرضی کریں۔ اچھا، آپ وہ باتیں مرزا صاحب کی اور خلفاء کی تو نہیں پیش کر رہے تھے، لیکن مرزا صاحب کی وہ باتیں پیش کر رہے تھے جو پہلے مرزا صاحب کا عقیدہ ہوتا تھا کہ میں جو، کیونکہ میرا شریعت والی نبوت کا دعویٰ نہیں ہے، اس لیے میرے انکار سے کوئی کافر نہیں ہوتا، وہ پرانے اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں۔ آگے والی یہ بات نہیں بتا رہے کہ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ مجھے وحی اور الہام سے پتہ چلا ہے کہ جو شخص تجھے نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ یہ والی باتیں نہیں بتاتے۔ اینڈ پہ ٹاک ماسٹر صاحب نے یہ کہا ہے کہ مجھے یہ حوالہ کوئی مل گیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو آیت میں نے پیش کی ہے نا، اس میں حقیقی نبیوں کا ذکر ہے، یعنی کہ نبی جو رسول ہوتے ہیں نا ان کا ذکر ہے۔ مرزا صاحب ذلی بروزی ہیں، غیر حقیقی ہیں، غیر تشریح ہیں، اس لیے مرزا صاحب کے انکار کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا، مسلمان دائرہ اسلام سے خارج ہم اس کو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ مرزا صاحب جو ہیں وہ ذلی بروزی نبی۔ ایتھے گل مکی ہے اینڈ تے، تو او دا میں جواب دیندا سی تے ٹاک ماسٹر صاحب وہاں سے ناراض ہو کے چلے گئے، کیونکہ وہ طاہر خان ٹوپی صاحب بیچ میں بولنا شروع ہو گئے۔ تو ٹاک ماسٹر صاحب کہا نا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اگر دو بندے بات کر رہے ہیں تو یہ بندہ بیچ میں بولنا شروع ہو گیا، تو میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ اس نے یہ کہا تھا کہ یہ ٹاک ماسٹر جو بات کر رہا ہے یہ غلط کر رہا ہے۔ اس نے یہ کہا طاہر خان ٹوپی صاحب نے کہ رسول اللہ نے فرمایا امام مہدی کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ کافر ہے۔ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ وہ مسلمان اس کے باوجود بھی، اور مرزا صاحب ذلی بروزی ہے؟ یہ لوری ہے۔ تو میری بد دعا ہے، میں کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کو یہ کہوں گا کہ جنہوں نے مرزا صاحب کو نہیں مانا وہ مسلمان جو ہیں، بے شک بٹالوی صاحب کو جنت میں بھیج دے، لاہوریوں کو کبھی جنت میں نہ بھیجنا، ان کو جہنم کے کھڑے میں پھینکو، انہوں نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے۔ تو وہ یہ رونا رو رہے تھے اینڈ پہ، تو پھر وہ سیف احمدیہ صاحب آگے اور انہوں نے آگے وہاں پہ فتاوی رضویہ۔ اس میں یہ آیت کس نے پیش کی کہ نبیوں کا انکار کفر ہے؟ یہ ٹاک ماسٹر صاحب نے پہلے جب پیش کی تھی نا، تو وہ اس سٹانس پہ تھے کہ مرزا صاحب کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس آیت میں لکھا ہے کہ جو بھی کسی نبی رسول کا انکار کرے گا وہ کافر ہے، اور مرزا صاحب کو نبی رسول مانتے ہیں۔ یہ بریک سے پہلے کی بات ہے جو یہ سٹانس انہوں نے لیا تھا۔ پھر کوئی 35 منٹ کی بریک ہوئی ہے، تو بریک کے بعد جب آئے ہیں تو کہتے ہیں نہیں، اب مجھے ایک اور بات مل گئی ہے کہ مرزا صاحب ذلی بروزی نبی ہیں، لہٰذا ان کا انکار کرنے والا اس آیت کے انڈر نہیں آتا۔ یہ ٹاک ماسٹر صاحب نے بعد میں بیانیہ اپنا بدلا۔ نہیں، ذلی بروزی نبی تو نبی کوئی نہیں ہوتا نا۔ تو میں نے یہی کہا نا، پھر اینڈ پہ تو میں نے یہی کہا کہ وہ پھر نبی نہیں ہے۔ نبیوں کی لسٹ سے تو مرزا صاحب کو آپ نے نکال دیا، قرآن سے بھی نکال دیا، پیچھے بچی ہی کوئی شے نہیں۔ دعوے دار ہے تو پہلی تو بات یہ ہے وہ نبی نہیں۔ اگر وہ نبی نہیں ہے تو اس کو یہ بھی کہنے کا حق نہیں ہے کہ وہ ہے تو مسلمان پر میرا منکر کافر ہے، میرا کافر ہے، ویسے کافر نہیں پر میرا پھر یہ بھی نہیں کہہ سکتا، پھر کچھ بھی نہیں وہ کہے، وہ اس کا کوئی حیثیت ہی اس کی نہیں ہے۔ ذلی بروزی نبوت کوئی نبوت ہی نہیں ہوتی، سارا ہی نان سینس ہے۔ اور ابھی اسی کا جواب دینے لگا تھا تو ٹاک ماسٹر صاحب ناراض ہو کے چلے گئے تھے، تو وہ کہتا ہے نہیں اب تم جواب نہ دو کیونکہ وہ وہاں پہ موجود نہیں ہے، کل دوبارہ سے ٹاک ماسٹر صاحب آئیں گے، آپ بھی آ جانا، تو سامنے بیٹھ کے دوبارہ سے اسی سے یہیں سے شروع کریں گے، تو آپ نے جو بھی جواب دینا ہوا تو دو، کیونکہ میں نے کہا اس میں دو جو ہے نا وہ فلاز ہیں اس بات کے اندر جو بھی آپ نے کی ہے نا، اس کے لیے دو باتیں ہیں جو سامنے کھڑی ہیں، آپ پھر ان کا حل کر کے دیں۔ پہلا تو خود مرزا صاحب کھڑے ہیں، آپ نے مرزا صاحب کے ہی خلاف بات کر دی ہے۔ دوسرا، آپ کے خلیفہ صاحب مرزا بشیر الدین صاحب جو آپ کے خلیفہ ہیں، اور اس کے علاوہ مرزا صاحب کا دوسرا بیٹا مرزا بشیر الدین ایم اے صاحب، وہ آپ کے سامنے کھڑا ہے، اب ان کو کدھر کرنا ہے، وہ کدھر جائیں گے؟ تیسرا، لاہوری اور مرزا بشیر الدین صاحب کے ساتھ جو آپس میں اختلافات ہوئے تھے، ان میں ایک اختلاف یہ بھی تھا نا کہ آپ مرزا صاحب کے نام ماننے والوں کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ مرزا بشیر الدین کہتا تھا وہ کافر ہے، وہ مرزا صاحب نبی ہیں، ان کو وہ نبی نہیں مانتے، وہ میں ان کو کیسے مسلمان کہہ سکتا ہوں؟ تو محمد علی لاہوری صاحب نے یہی بیانیہ دیا تھا جو ٹاک ماسٹر صاحب اینڈ پہ دے کے گئے ہیں، اور کہ مرزا صاحب تو نبی نہیں ہے، وہ تو ذلی بروزی اور مجدد ہے، اور وہ ہے، تو وہ ان کے انکار سے تو بندہ کسی کو کافر نہیں کہہ سکتا۔
تو یہ ساری چیزیں حل کر کے کون دے گا؟ اچھا، میں آپ کو ویسے ایک انفارمیٹیو بات بتا دوں کہ اگر آپ لاہوریوں کے ساتھ ان کا تنازعہ کھول کر دیکھیں گے نا، اس کی تفصیل کھول کر دیکھیں گے، تو وہاں پر جتنی بھی بحث ان کے درمیان میں ہوئی ہے نا کافر مسلمان کی، اس میں کہیں پر بھی یہ ٹیک چلیاں موجود ہی نہیں ہیں کہ ویسے وہ مسلمان ہے پر اونج کافر ہے، انج کافر ہے تو اونج مسلمان ہے۔ یہ بکواس ساری بعد میں بھرتی کی گئی ہے، آپ ساری کھول کر دیکھ لیں۔ 1914-15 سے یہ بحث شروع ہوئی ہے، 20 سال تک کے ان کے رسالے الفضل اخبار قیام صلح کھول کر دیکھ لیں۔ اگر آپ کو وہاں پر اس طرح کی کوئی اصطلاح نظر آ جائے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، ویسے تو وہ کافر ہے پر ویسے وہ مسلمان ہے، یہ ایسے ہی ہے کفر دون کفر، جس طرح نبی پاک نے فرمایا کہ جس نے نماز ترک کی اس نے کفر کیا، یہ ایسا کافر ہے، یہ ویسا کافر ہے، ویسا نہیں تو ایسا کافر ہے، ایسا نہیں تو تیسا کافر۔ یہ بات آپ کو وہاں ملے گی نہیں۔ آپ وہاں پر جب بھی پڑھیں گے نا ان کی عبارات دونوں فریقین کی، تو آپ کو سیدھی سیدھی کفر اور اسلام کی ایک اصطلاح ملے گی۔ جو کافر ہے وہ کافر ہے، جو مسلمان ہے وہ مسلمان ہے۔ وہ کہتے تھے ان کو مسلمان مانو، یہ کہتے ہیں ہم ان کو کافر مانیں گے، کیونکہ انہوں نے نبی کا انکار کیا ہے۔ نبی کا منکر کافر ہوتا ہے۔ اگر نبی کا منکر کافر ہے تو پھر اسلام کا تو جواز ہی کوئی نہیں، اسلام کا تو نام لینا ہی بیچ میں وہاں پر ذکر ہی نہیں۔ لیکن مرزائیت ایسے دجل اور فریب کا نام ہے کہ ان کا جو گرو تھا وہ بھی ساری زندگی پہلے یہی کہتا رہا نا، نبوت کا دعویٰ نہیں ہے، نہیں ہے، جو نبوت کا دعویٰ کرے گا اب نبی پاک کے بعد وہ لعنتی ہے، کذاب ہے، دجال ہے۔ اس کے بعد اپنی خاص وہ بیچ میں ڈال لی، استثناء ڈال لیا۔ پہلے تو لا نبی ہے، بعد ہی کہہ کے لکھتا رہا کہ اس میں استثناء ہی کوئی نہیں ہے کسی کو، لیکن بعد میں اپنا ذلی بروزی غیر حقیقی غیر مستقل فنا فی الرسول کر کے چادر پہن کے برقع پہن کے چشمے سے پانی پی کے صدیقیت کی کھڑکی سے داخل ہو کے آئے تو پھر خیر ہے، پھر یہ بیچ میں چیزیں ڈال لیں۔ لیکن 1891 سے لے کر 1901 تک 10 سالوں میں آپ کو کسی اخبار میں کسی رسالے میں یہ نہیں دکھائی دے گا کہ اس قسم کی نبوت جائز نہیں، اس قسم کی نبوت جائز ہے، یہ نبی نہیں آ سکتا، وہ والا آ سکتا، نہیں، نبی آ ہی نہیں سکتا۔ نبوت بند ہے، نبوت بند ہے، نبوت کا سلسلہ نبی پاک پر بند ہو گیا ہے۔ میں نے تو صرف خود کو محدث کہا ہے، اور وہ محدث کے بارے میں نے یہ کہا ہے کہ وہ بھی ایک قسم کا وہ ہلکا پھلکا وہ نبوت کی اس کے اجزاء ہوتے ہیں، اور نبوت میں نے تو یہ کہا، مولویوں نے میرے سختی کر دیا، ظلم کر دیا، مجھے مدعی نبوت ہی بنا دیا، میں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ لیکن 1901 میں آ کے میں اس قسم کا نبی اور رسول ہوں، اس قسم کا نبی اور رسول ہونے سے میں نے کبھی بھی انکار نہیں کیا۔ کیسا فراڈ ہے، کیسا دھوکہ ہے۔ لیکن پھر بھی وہاں بھی تو بے حیائی کی انتہا کی ہے، وہاں بھی آگے یہ لکھا ہے کہ جاہل مخالف مجھ پر الزام لگاتے ہیں کہ اس شخص کا نبوت۔ بھائی اگر تم اس قسم کے نبی اور رسول ہو تو پھر وہ جاہل مخالف تو نہیں ہے نا، پھر تو مدعی نبوت ہو نا۔ لیکن نہیں، سچ بولنا ہی نہیں، جھوٹ بولنا ہے، جھوٹ بول کے دھوکہ دے کے کوشش کرنی ہے، اپنا ٹائم ٹپاؤ، کسی کا نام مرزائیت نہیں۔ ایسے یہ کفر اور اسلام والا مسئلہ ہے۔ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ اب جب مصیبت پڑی ہے، اب آ کے پتہ چلا ہے، تو اب کہتے ہیں نہیں یہ اصل میں ہیں تو مسلمان پر حقیقی مسلمان نہیں ہیں، یہ ہیں تو کافر پر حقیقی کافر نہیں ہیں، ایک طرح سے کافر ہیں ایک طرح سے مسلمان ہیں۔ مرزائیت سارا
यही कारोबार है, यही धंधा है, यही फ्रॉड का इनाम है। इनके आगे सिर्फ और सिर्फ इनका इलाज यही है, इनके आगे इनकी तहरीरात रखें और इनको झंझोड़ के पूछें असना कैसी तबीयत है। तो ट्रुथ सीकर है, कुरान में नज़ूल मसीह का जिक्र है, ईसा अलैहिस्सलाम के वापस दोबारा आने का जिक्र है। ट्रुथ सीकर, अल्लाह की कसम है, ऐसे लाश बन गया वो परसों रात को ना, लाश बन के गिर पड़ा जब रखा ना मैंने सूरह ज़ुखरफ की 57 नंबर आयत। हाँ उत्ते आ वाला, मैं तेन कट के भावा आयत ऊपर आ वाला, सूरह ज़ुखरफ की 57 नंबर आयत में ईसा अलैहिस्सलाम के दोबारा नाज़िल होने का जिक्र नहीं है। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਇਲਮ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੂਸਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਭਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਇਲਮ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਤਾ, ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਇਲਮ 'ਚ ਆਇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੈਸ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਉਹ ਦੂਆ ਕੀ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ੇਰੀ ਕਿ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਬੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ। ਕਿਆ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਤੱਕੋ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਰਹਿਣੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ। ਕੈਸੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਟੋਲਾ ਏ ਆਮਰ ਭਾਈ ਹੁਸ਼ਾਮਦੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿਣ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨੇ, ਇਹ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੰਜੀ ਠੋਕਨੇ ਆ ਤੇ ਨੌਕਰ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਜ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਜ ਹੀ ਸਹੀ। ਇਹ ਉਹ ਢੀਠ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਝਾੜ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾਬੂ ਕਿੱਥੇ ਪੇ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚਿੱਤਰ ਕਰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਮੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਦੀ, ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਯਬ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕਸਮ ਹੈ ਸਹੀ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਜਾਈਦਾ ਬੈਤੁਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਤਾਹਿਰ ਕਿ ਬੈਤੁਲ ਕਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਤੁਲ ਹਲਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਈਦਾ ਸ਼ਾਮੀ ਤੇ ਪੁਰ ਸਕੂਨ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਜਾਈਦਾ ਤੇ ਸੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਬੈਤੁਲ ਫਤੂ ਗਏ ਤੇ ਸਵੇਰ 0 ਮੀਟਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। यार कैसे लोग ने यार, जी देखो कैसा धोखा है। वालेकुम सलाम। आमिर भाई क्या हाल है, खैरियत से? ठीक ठाक है, बड़ी माजरत है मैं बीच में मुखिल हुआ। आमिर भाई सही तो नहीं शाह बात करो। हाँ जी मैं तो आपकी आवाज़ पहचान ली है, बड़ी मुद्दत बाद आपकी आवाज़ सुनी है, मुखिल होने की कौन सी बात है। यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू बड़ी मेहरबानी आमिर भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए खैरियत से हैं? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। आमिर भाई मैं ज़रा वक्त लेना चाहता था आपका दो बातों पर जिन पे ज़रा सी मैंने देखा था बारीक बीनी से, तो मैंने कहा आपसे डिस्कस करूँगा, आपके इल्म में भी लाना चाहूँगा। कि पहली तो बात यह है कि जी आपने मेरे से बेहतर जानते होंगे जी मिर्जे की, बाकी भाइयों से बहुत माजर, तो मैं ऐसे बात के बीच में मुखिल हो गया हूँ, लेकिन वो मौका मिला आमिर भाई से, मैंने कहा मैं पहली बात यह आमिर भाई कि ये मिर्जे का जो इल्हाम है और इसकी ये जो पेश गोई इसने लिस्ट भी बनाई है, उसमें 26 नंबर की पेश गोई है। आप मेरे से बेहतर जानते हैं इसने कि मैं तेरी निकाह में खदीजा दूंगा, ये इसने हराम जदगी जो की है ये जो, अच्छा इसकी इसने तावील यही की ना जी कि वो मेरे जो है निकाह में वो एक संधी सैयदजादी संधी सादात दिल्ली आई है नुसरत जहाँ, जो मीर दर्द और वो घराने से है, वो वाली जो पेश गोई है ना जी। अब आमिर भाई बात ये कि ये क्योंकि आपकी मैं उस दिन बात सुन रहा था कि वो निज़ामुद्दीन वाली मौलाना बटालवी वाले के जो बात करता है उसकी उलट निकलता है, तो ये बात भी इसकी बिल्कुल झूठ है। अब बात ये है कि वो संधी सैयदजादी जो है ना आमिर भाई, वो इन्होंने अपनी किताब जो इरफानी ने लिखी है ये इस पे अपनी क्या नाम है इसका क्या नाम है नुसरत जहाँ के नाम से ही किताब उसने लिखी है, इसके अंदर उसने शजरा पूरा लिखा है इसका। वो शजरा जब देखा है ना आमिर भाई मैंने वो शजरा जब देखा है तो उसमें तो एक तो अइम्माए अहले बैत के नाम ही गलत लिखे हुए हैं। पहली बात यह है कि वो नाम ही गलत लिखे हुए हैं, मशहूर अइम्मा के, यानी कि इमाम मूसा काजिम के बेटे इमाम अली रजा, उनका नाम मूसा रजा लिखा हुआ है। बहरहाल इस तरह बहुत गलतियां अगलात हैं। और उसके बाद जहां से शजरा भी चलाया है ना जी, वो इमाम हसन अस्करी के बेटा कोई बनाया हुआ है अली अकबर। हसन अस्करी, इमाम हसन अस्करी सुन्नियों अहले सुन्नत के नज़दीक, अगलब के नज़दीक वो लावलद है,
और बहुत ही शाज़ के अक़वाल है कि उनका एक बेटा था जो फौत हो गया, नाम मोहम्मद था। शियों के नज़दीक उनका बेटा इमाम आखिरी, उनका कोई भाई नहीं है, ये कोई उनका छोटा भाई बना के उधर से शजरा चला के मिर्जा ने काम सीधा किया हुआ है। ये एक बात कि ये शजरा इंतहा का जाली है। अगर कोई कादियानी मरज़ई इस शजरे को आके साबित कर जाए जी, यानी कि आप इसकी झूठ देखें, अल्लाह ने इसको पकड़ना है तो ये पकड़ा ही देता है। ये किसी भी इमाम से अपना शजरा जोड़ देता है उसकी, लेकिन इसने जोड़ा इमाम हसन अस्करी के बेटे से, जो कि है ही नहीं अली अकबर, वजूद ही नहीं रखता। तो बिल्कुल यानी कि मुंह पे झूठ आके बोलने वाली बात है। ये कोई भी मरज़ई हो तो अगर इसका शजरा साबित कर जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी कि आके अगर वो बात करे इसके ऊपर कि सादात का, ये देखिए मैं खुद खानदान सादात ज़ैदिया से मेरा ताल्लुक है और हम सब का सादात जितने होंगे उनका इतराज होगा, यार क्यों नहीं होगा आमिर भाई, ये कोई जट गोद का आदमी थथाल का हो और कोई थथाल उठ के कहे कि यार फिलहाल जट नहीं है और वो नहीं होगा, तो जाहिर बात है कि जट्टों को सबको बर्दाश्त नहीं होगी। इसी तरह सादात को बर्दाश्त नहीं है कि एक इस किस्म की औरत है और फिर वो ये गुरदासपुर के फितने के अंदर शिकार होके उसकी पेशगोई भी सच्ची करती है और बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा के नाम माज़अल्लाह ये लेता है। यानी ये सब कुछ एक फहाश झूठ है मिर्जा कादियानी का, बिल्कुल झूठ है। ये बात मैंने कह दी थी कि आपके अगर इल्म में हो तो आप इसके ऊपर जरा बताइएगा कि ये जो इसकी पेशगोई है कि मैं तेरी निकाह में खतीजा दूंगा, ये किस किस्म का थर्ड क्लास इसका बयान है और कैसे झूठ इसका आगे से निकला है? अच्छा, इसमें ना वो पेशगोई वाली जो आप बात कर रहे हैं ना, पेशगोई नहीं है, बल्कि ये इल्हाम उसने बाद में घड़ा है, 84 के बाद है। तो वो बराहीन अहमदिया में लिखा हुआ कि हमने तुझे तेरी खतीजा अता के इस तरह के अल्फाज लिखे हुए हैं बदबख्त ने, लेकिन उसमें कबल अज वक़्त इस तरह की कोई पेशगोई नहीं है। मेरे ख्याल से आप इसको पेशगोई ना करार दे सकते हैं कि भाई इसने कोई इस तरह की पेशगोई की थी कि मेरे निकाह में कोई खतीजा आएगी, इस तरह की नहीं है बात। बल्कि जब उसका निकाह उसके साथ नुसरत जहाँ बेगम के साथ हो गया है, क्योंकि इसका 84 में निकाह हुआ है, लिखी ये बराहीन अहमदिया भी 84 में ही है, तो वो वहाँ पर पेशगोई के अल्फाज भी नहीं है। मेरे ख्याल से वो यही है कि मुझे ये अल्लाह ताला ने खुशखबरी दी है कि हमने तुझे खतीजा अता की, इस तरह के अल्फाज। तो पहली बात माज़रत के साथ मैं आपकी बात काट रहा हूँ जी, मेरे ख्याल से इसने वो पेशगोई की जिधर लिस्ट बनाई है ना जी, तो 26 नंबर की पेशगोई इसको करार दिया है। मैं वो हवाला भी आपको पढ़ देता हूँ, अगर मुझे आप इजाज़त देते हैं मैं निकाल देता हूँ। इसने खुद करार दिया जी। चलो, आप नज़ुलुल मसीह की बात कर रहे होंगे। नज़ुलुल मसीह में उसने इसको अपना निशान के तौर पर करार दिया, ये कहना चाहते हैं? देखें जी, निशान के तौर पे, और ये कह रहा है कि वो उसके अल्फाज जहाँ तक मेरे ख्याल है वो यही मैं भी निकाल रहा हूँ कि मैं दूंगा, यानी वो माजी की बात या वो मुजारे के अंदर बात नहीं, वो आगे की बात कर रहा है, मुस्तकबिल की कर रहा है। नहीं, वो तो अगर उसने हकीकतुल वही में अपने निशान लिखे हैं तो जाकर देखें तो उसने वहाँ पर सारे झूठ बोले हुए हैं कि भाई बराहीन अहमदिया में मुझे ये इल्हाम हुआ था, फलानी जगह मैंने ये इश्तिहार दिया था, फलान जगह मैंने ये बात कही थी। तो वो सारे झूठ हैं। एक तो वो खिलाफ हकीकत बात लिखता है। अगर उसने नज़ुलुल मसीह में इसको उसके मुस्तकबिल के सीगे के साथ लिखा है ना कि मुझे ये खुदा ने कहा था कि तुझे ये बीबी दी जाएगी, तो वो वहाँ जाकर बराहीन अहमदिया से खोल कर देखेंगे, वहाँ आपको चीज़ ये नज़र ही नहीं आएगी। ये पहली बात कन्फर्म है। अच्छा, हाँ, सारा जो है ना वो झूठ है। हकीकतुल वही के कितने निशान लिखे, सारे के सारे झूठ लिखे हुए हैं। भाई चकवाल में बंदे मर गए टीका लगवाने से, तो कह दिया कि कश्ती नूह में, मैंने कश्ती नूह में कहा था, लिखा था कि टीका लगवाने से बंदे। अब जाके कश्ती नूह खोल के देखें, कोई भी नहीं है वहाँ पर, झूठ है बिल्कुल। इसी तरह से मैंने आज से 20-21 साल पहले इश्तिहार छापा था कि मुझे खुदा 4 लड़के देगा जो उम्र पाएंगे, वो भी झूठ है, कोई ऐसा इश्तिहार नहीं है। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर उसने पीछे रेफर किया है कि पिछले ज़माने में मैंने फलां किताब में इसको बतौर पेशगोई के शाया किया था, तो वहाँ आपको वो पेशगोई नहीं नजर आएगी। ओके, वो एज अ निशान है। हाँ, अच्छा, ठीक है, ठीक। आमिर भाई ये भट्ट साहब आए थे, आमिर भाई ये भट्ट साहब आए थे, भट्ट साहब ने तो कोई बात नहीं करनी थी, मैं देख रहा था नीचे। देख लें, गलती नाल हथ लग गया होना उन्हां दा भट्ट साहब दा।
ਨਹੀਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਮਰ ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਆ ਹੀ ਨਾ ਜਾਣ ਹੈ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਸੜਦੇ ਨੇ। ना ना एक मिनट दियो अजीम भट्ट साहब आए, अजीम भट्ट साहब आए, उनसे हम पूछें कि इसको सही दादी साबित करें अपनी आप ये जो है। इब्राहिम भाई एक मिनट दीजिएगा। भट्ट साहब आपने ऊपर आना है तो 1 मिनट के लिए ऊपर आ जाएं। आपने वो जो बात हमने कल की थी, अगर उसमें कोई बात आपने करनी है तो आ जाएं ऊपर, कर लें आपने जो बात करनी है, मैं सुनता हूँ। ਜੀ अस्सलाम वालेकुम ਅਮਰ ਭਾਈ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਬਸ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਮਰੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੌਕਸ ਪਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਤਵਾਫ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਹੀ ਵਗੈਰਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾ ਮਰਵਾ ਤੇ? ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਉੱਥੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਤੇ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਫਲੇਟ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी भट्ट साहब करोगा? जी इब्राहिम शाह साहब मौजूद ने, एक दो इन्होंने सवाल करने ने। एक तो सवाल है वे कि भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम। भट्ट साहब क्या हाल है, खैरियत? जी वास्सलाम। मैं एक सवाल लेके आपके पास कितने अरसे बाद आया भट्ट साहब? मेरे भी सवाल सुन लेना, हम गरीबों को तो यार उसका जवाब उसी जो मैं बात करने लगा हूँ ना, आपके सवाल का जवाब आ जाएगा, ठीक है? अच्छा उसी में है। अच्छा हाँ जी हाँ जी। पहले तो बात ये है कि 50 साल में आपने खतबे नबूवत के नाम पर पाकिस्तान में हर बर्बरियत की, घरों को आगे लगाई, लोगों को शहीद किया, जिंदा लोगों को जलाया, लाशों को जलाया, कब्रिस्तान, यानी कि अगर मैं आपकी बर्बरियत की लिस्ट बनाऊं तो शायद वो खत्म ही ना होए। 50 साल में किसी शिया आलम का मुझे बता दें कि उसने कहा हो कि भाई मुझसे आकर दलील से बात करो पाकिस्तान की सरजमीन पर। कोई यूट्यूब जो चैनल कोई शिया आलम ने खोला वो बता दे जरा। ਅਮਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। अच्छा, इस बात से आपने नुसरत जहां साहिबा को सही दादी वो मैं साबित की? अगले आपने सवाल में समझ- जवाब है, इसका जवाब दे दें पहले। आपने कहा था कि आपकी बात में जवाब होगा, मेरे सवाल का कोई जवाब चले नहीं। वो चले इसका जवाब नहीं है, मैं आप वो सवाल पूछता हूँ ना जिसका ना आपका जवाब मेरे होगा। ना कोई सवाल, मैं आपके सवाल का देखें 100 पूछेंगे भट्ट साहब, मैं इधर ही मौजूद हूँ, मैं जवाब दूंगा तसल्ली बख्श, इस सवाल का जवाब दूंगा। आपकी किताबों से दिखाऊंगा कि मुबल्लिग आजम का आप लोगों ने, इस्माइल देवबंदी का आप लोगों ने ही खत छापा हुआ है। मैं अल फजल अखबार से आपको दिखाऊंगा कि उन्होंने कहा है कि हम हमसे आगे दलील से बात करो, हम हरारियों की मजम्मत ठीक हो करते गया, हैं और ठीक हमारी हो आके वो आपको मैं दिखाऊंगा। लेकिन हो आप गया। पहले मेरे सवाल का प्लीज जवाब ठीक हो दे गया। कि प्लीज मेरे आपके- सवाल का जवाब आपके सवाल का कि जवाब ये है। देखें हाँ। मैं एक मिनट रुक जाए भट्ट साहब, मेरा प्रेमिस पूरा बांध देना जी। आप एक आलिम शख्स है अपनी जमात के, तो मैं चाहता हूं कि आप आ गए और मैं आपने मुझे जरा नवाजी है कि वक्त ही है, तो प्लीज मेरा सवाल आप मुकम्मल सुन ले ताकि जवाब ऐसा आ जाए कि कौम शिया को नहीं, कौम सादात को, ताकि ये आपसे सवाल दोबारा ना कर सके, अगर आपकी इजाजत हो तो। जी मैंने मुझे पता है आपके सवाल का, मुझे बात करने दे, आपका सवाल उसमें आ जाएगा, ठीक है? मेरा सवाल आप एक दफा रिपीट कर दें जी, ताकि मुझे यार पता चल बात जाए तो कि- मुझे करने देना। जी बिस्मिल्लाह। बात ये है कि न्यूट्रल स्पेस होगी, 5 हवाले आप हमारी कुतब से, उसमें ये भी ले लें, ये जो हज़रत खदीजा वाला है, 5 हवाले हम आपको शिया की कुतब से देंगे, आपने वो हमें समझाने हैं, पढ़ के सुनाने हैं, और मैं वो पढ़ के सुनाऊंगा अपने हवाले और समझाऊंगा, ठीक हो गया? इससे मैं बेहतर कहता तो हूं मैं कुछ नहीं कर भट्ट सकता। साहब, मैं कहता हूं, मैं आपको इससे बेहतर ऑफर करता हूं। मैं कहता हूं कि मैं आपको एक पेश करूंगा, आप मुझे 1000 पेश कीजिएगा, लेकिन पहले एक के ऊपर आपने तसल्ली यार उस 5 में भाई एक ले आना ना, आप मैं कह तो रहा हूँ। ना मैं एक ही आपसे बात करना चाहता हूं। नहीं, मुझे इस निशान पे नहीं आपसे बात मैं करनी है। मेरे 5 सवाल आप पर, आपके हवाले, और आप 5 मुझे देंगे, ठीक हो गया? भट्ट साहब मैं कहता हूं मैं एक करूंगा, आप 1000 करें। आप सिर्फ इसका मुझे 1 घंटा सिर्फ दे दें, इसका जवाब दे दें। आप वक्त तय कर लें मेरे साथ। भट्ट साहब एक मिनट होल्ड करना, 1 मिनट होल्ड करना। इब्राहिम भाई आप सवाल अपना रिपीट करें, क्या सवाल था आपका, रिपीट करें। जी मोहम्मद भाई आपका नाम लिखा हुआ आ रहा है, तो मेरा सवाल ये है कि मिर्जा साहब की, बल्कि आमिर भाई मैं अपनी बात में, मैं दोबारा अपनी बात रिपीट करूंगा कि मैं मिर्जा साहब दीवानी खजान जल्द नंबर 18 नज़ुलुल मसीह सफ़ा नंबर 524 निशान नहीं बल्कि पेशगोई नंबर 26 मिर्जा साहब ने खुद लिखा हुआ है कि ये एक बशारत कई साल पहले इस निकाह की तरफ थी जो सादात के घर में दिल्ली में हुई, जिससे बफजल ताला 4 लड़के पैदा हुए और खदीजा नस्तजीर बिल्लाह, इसलिए मेरी बीवी का नाम रखा गया कि वो एक मुबारक नस्ल की माँ है, जैसा कि उस जगह भी मुबारक नस्ल का वादा था। और नीज ये इस तरफ इशारा था कि वो बीवी सादात की कौम से होगी। उसके मुताबिक दूसरा इलाम है और वो है कि अल्हम्दुलिल्लाह
बहरहाल आगे दूसरी गुफ्तगू है। मिर्जा साहब की बात ये है, पेश गोई है कि ये मेरी पेश गोई है कि मैं कौम सादात से मेरा रिश्ता होगा। इन्होंने जो शजरा छापा है ना जी, सैयदा हजरत सीरत हजरत सैयदा नुसरत जहां बेगम साहिबा सफ़ा नंबर 98 शजर नसब इनका जो छापा हुआ है, इस शजर नसब के मुताबिक ये जाली सैयदजादी हैं, माजरत के साथ ये शजरा जाली है। ये नहीं चलें, ये रहने दें आप, इस तरह मतलब इस तरह ना दें आगे से, इसको हज़फ बस आप करें, इस बात सवाल को कर लेंगे। हज़फ चलें, इस बात को हज़फ हज़फ कर करते दें, हैं। मैं फिर सवाल को जी दूसरे अल्फाज में कर सिर्फ देता आप हूं सवाल करें, बाकी तो कि बात मैं की फिर बात है कि चलें। हमने वो बात मानी। इसके अंदर 29 नंबर खान जी, इसके अंदर 29 नंबर खाने में जो लिखा हुआ है ना कि ये अली अकबर इब्न हसन अस्करी, ये वजूद ही नहीं रखते हैं। ठीक है, चलो मैं आपको इनका पूछ लेता वजूद हूं। नहीं है जी भट्ट साहब देखें, बात ये है कि जब आप इधर ऊपर आए थे ना, तो एक इब्राहिम भाई एक सवाल जवाब कर रहे थे आमिर भाई के साथ, तो आपने अपनी बात में आके स्टार्ट में ये कहा कि एक सवाल मैंने भी आपसे करना है, लेकिन मैं इस सवाल के दौरान आपको जवाब भी दे दूंगा। अब आपसे वो सवाल, क्योंकि उनका जवाब आपके ऊपर, सवाल उन्होंने पहले किया है और उसका जवाब आपके ऊपर है, तो आप वो जवाब दे दें। और उसके बाद ये जो बात आप कर रहे हैं ना कि किसी न्यूट्रल जगह के ऊपर हम लोग बात करेंगे, वो 5 वाले आप ले आना, ये वाला भी बीच में ले आना, वो बात आप कर लेना बाद में इब्राहिम भाई से, वो एक सेपरेट मामला है, वो आप उनके साथ तय कर लेना। लेकिन ऊपर आने से पहले वो ये बात कर रहे हैं, अब इसका अगर कोई जवाब है भट्ट साहब तो वो दे दें उन्हें, अगर आप देना चाहते हैं। नहीं भी देना चाहते, प्रॉब्लम कोई नहीं है, वो बात अपनी रिपीट ना कीजिएगा कि वो बर्बरियत हो रही है, वो मैंने सुन लिया बात ना, सबने सुन लिया अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यानी कि आप बर्बरियत कर रहे हैं, साथ कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह। मैंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई 1000 दफा ये बात आपने मुझे सुना दी है, मैंने प्राइवेट में भी आपसे बात सुन ली और इसका जवाब भी कई दफा आपको मिल चुका है। कोई लेकिन जवाब उसको नहीं दिया, आपने नहीं कहा कि हम थक गए हैं जुल्म कर करके, अगर आइंदा नहीं करेंगे। चलो मैं इसके आपकी पहले जुबान से ये बर्बरियत का भी जवाब निकला दे कि हम देते हैं। थक चुके हैं यार, 50 साल बहुत जुल्म कर लिया। क्या जवाब अच्छा दिया यार, आपने? लेना है बर्बरियत का, आपने बर्बरियत का पहले जवाब लेना है। मैंने जिससे पहले किया उससे बर्बरियत लेना, का जवाब लेना है आपको हम देख चुके हैं बार अच्छा, बार। उससे लेना, ठीक। हाँ जी हाँ जी, यानी आपको जवाब हम भी भुगत वो चुके लेना है हैं। जो आपकी मर्जी है, बंदा भी वो जो आपकी मर्जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आपको हम भुगत चुके हैं, आपकी खत्म नबूवत की आयात हम सुन चुके हैं, वो सब कुछ हो चुका आपसे। बट साहब नवा चैप्टर बाद चो खोल लांगे, मैं इत्थे मौजूद हाँ, काफी दिनों बाद आया वा, इस गल नूं अगे लैके चले जाएंगे। आमिर भाई अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद ने, मेरे तो की इस टिकटॉक ते सब तो अच्छा जवाब तुहानूं दे सकदे आ, ओदी कोई परेशानी मैनूं नहीं है कि आमिर भाई तुहानूं जवाब नहीं दे सकदे। अल्हम्दुलिल्लाह यार बहुत अच्छा क्यों जवाब ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਯਾਰ, WhatsApp ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਸਵਾਲ ਦਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚ ਇਬਰਾਹਿਮ ਭਾਈ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾ ਨਾ, ਆਇਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਬਰਾਹਿਮ ਭਾਈ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾ ਨਾ, ਯਾਰ मैंने ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ? ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ? ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਖੌਫ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਚ ਇੱਕ ਆਇਤ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਭਾਈ ਨੇ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਰਬਰੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਇਬਰਾਹਿਮ ਭਾਈ ਦਾ, ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਵਾਬ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਨਾ ਬਣੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੋਡਰੇਟਰ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਬਰੋਡ ਤੇ ਮੈਂ ਮੋਡਰੇਟਰ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਵਾਬ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਭਾਈ ਵੇਟ ਕਰ ਲੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆमिर ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਮਾਮਲਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ। तो पीपा जाके तो निकल गए ना। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि अगर बर्बरियत का जवाब चाहिए आपको, तो कल रात को मैंने हुसैनी साहब की बराड पर दिया है, वहाँ से रिकॉर्डिंग सुन लें, वरना मैं कहते हैं तो दोबारा अपनी रिकॉर्डिंग खुद ही प्ले कर दो, अपनी ज़ुबान से प्ले कर देता हूँ कि आपके साथ जो कुछ हुआ है ना, जिसका नाम आपने बर्बरियत रखा हुआ है, उसकी कोई पीछे बैकग्राउंड भी होगी ना, लोगों को बताएं कि इसकी बैकग्राउंड क्या है, जिसको हम बर्बरियत कह रहे हैं, ये क्यों हुई है हमारे साथ, हमारे घर क्यों जले, हमारे सर क्यों कटे। ये मैं टोनी साहब को कल रात बता रहा था कि मुसलमान कहते हैं वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, सिर्फ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। मिर्जाई कहते हैं कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी है रहमतुल लिल आलमीन। मुसलमान कहते हैं कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। उस मिसाकुन नबीयीन आयत के मिसदाक और मुसद्दक रसूल वो
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिनके मुतल्लक अल्लाह ताला ने मिसाक लिया अंबिया से। मिर्ज़ाई कहते हैं कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी वो मुसद्दक रसूल है, और मिर्ज़ा कादियानी के मुतल्लक मिसाक लिया गया नबियों से। और माज़अल्लाह नकल कुफर नबाशद के अगर मिर्ज़ा कादियानी की ज़िंदगी में नबी अलैहिस्सलाम भी दोबारा ज़िंदगी में आ जाएं तो मिर्ज़ा कादियानी की बैत नबी पाक को करनी पड़ेगी। माज़अल्लाह माज़अल्लाह माज़अल्लाह। आपके घर इसलिए जले, आपके सर इसलिए कटे कि आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर शर्फ को ना सिर्फ छीनने की कोशिश की बल्कि उसके साथ बदमाशी करने की कोशिश की। ईसा अलैहिस्सलाम ने जिस नबी के आने की, जिस रसूल के आने की खबर दी, और कुरान में लिखा है व मुबश्शिरम बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, कि ए बनी इसराइल मैं तुम्हें बशारत देता हूँ उस रसूल की जो मेरे बाद आने वाले हैं जिनका नाम अहमद है। मिर्ज़ाई कहते हैं कि नबी पाक का अहमद नाम साबित करने वाले को 5000 रुपया हम इनाम देंगे, इनके 2 नंबर खलीफा ने कहा। तो बताओ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो नाम ये अहमद मानते नहीं, कहते हैं कि ये ईसा अलैहिस्सलाम ने मिर्ज़ा कादियानी के बारे में खबर दी, और सूरह सफ की ये 6ठी आयत मिर्ज़ा कादियानी के बारे में है। आपके साथ जो बर्बरियत हुई है, जो बकौल आपके बर्बरियत हुई है, आपके घर जले हैं, आपके सर कटे हैं ना, इन हरकतों की वजह से कटे हैं, इन हरकतों की वजह से आपके सर कटे हैं और आपके घर जले हैं। कि आप कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिरुज़्ज़मान नहीं है, बल्कि कौन है नबी आखिरुज़्ज़मान? मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी नबी आखिरुज़्ज़मान है। आप ये कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो आज से 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने उनको मबऊस फरमाया था, उनकी बेइज्जत जो हुई थी 1400 साल पहले, उस बेइज्जत से ज़्यादा अकवा, अकमल और अशद ये वाली बेइज्जत है जो मिर्ज़ा कादियानी 1901 में नबूवत का दावा करके जिस बेइज्जत का दावा करता था। ये वाली बेइज्जत उस बेइज्जत से ज़्यादा अकवा है, अकमल है और अशद है। बल्कि यहाँ तक आप ये कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनको अल्लाह ताला ने सिराज मुनीर करार दिया है, वदायन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, आप कहते हैं कि इसमें मोहम्मद की तजल्ली की अब ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि अब लोग, अब ज़माना सूरज की तपश को बर्दाश्त नहीं कर सकता, सिराज मुनीर की तपश को ज़माना बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए नबी पाक की इसमें मोहम्मद की तजल्ली की अब ज़रूरत नहीं रही। अब किसकी ज़रूरत है? अब मिर्ज़ा कादियानी की ज़रूरत है। इसलिए आपके सर कटे, इसलिए आपके घर जले, इसलिए आपके साथ बर्बरियत हुई कि आपने ये कहा कि मक्का और मदीना की छातियां खुश्क हो गई हैं, अब कादियान से फैज़ जारी होगा। इसलिए आपके सर कटे, आपके घर जले, आपके साथ बर्बरियत हुई कि आप वो कौम है जो कहती है कि हर शख्स तरक्की कर सकता है और रूहानी दर्जा, रूहानी मर्तबे में आगे बढ़ सकता है, यहाँ तक बढ़ सकता है कि वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी आगे निकल सकता है। अब जो मुसलमानों को ये सामने खड़ा होकर कहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी आगे बढ़ा जा सकता है, मुझे बताओ कि उसके साथ क्या होगा? उसके साथ कोई मुसलमान बर्बरियत ही करेगा ना। सबर 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 सबर, हौसला कर, हौसला कर। अभी तो दीवारों से नीचे जाके टक्करे मारने की टाइम है, जब ऊपर आने का टाइम होगा तो फिर आप बकायदा ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा के, मास्क लगा के ऊपर उठाएंगे। अभी नीचे दीवार से टक्कर मारे। सुन लो मेरी बात पहले, फिर बाद में ले सलाम कह लेना। मैं ये कह रहा हूँ कि आप के साथ बर्बरियत इसलिए हुई थी कि आप ये कहते थे कि मिर्ज़ा कादियानी का नबूवत का दावा करने से उसका कदम नबी पाक से पीछे नहीं रहा, बल्कि पहलू ब पहलू लाकर खड़ा कर दिया मिर्ज़ा कादियानी को नबी अलैहिस्सलाम के साथ, पहलू ब पहलू लाकर खड़ा कर दिया है, यानी उनके बराबर खड़ा कर दिया है। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि आपने झूठ बोला है और आपने तौहीन की है। हमारे महबूब नबी के कोई भी पहलू ब पहलू नहीं है, कोई नबी भी उनका पहलू ब पहलू नहीं है। मर्तबे के एतबार से, फजीलत के एतबार से सबसे अफजल अल्लाह ताला ने हमारे महबूब नबी को बनाया है। अफजलुल बशर अल्लाह ताला ने उनको बनाया है। बाद अज खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर ये है कि अल्लाह के बाद सबसे ऊंची हस्ती उनकी है, सबसे ऊंची ज़ात उनकी है। उनके पहलू ब पहलू ना उनसे आगे, ना कोई उनसे आगे निकल सकता है, ना उनके कोई पहलू ब पहलू खड़ा हो सकता है। एक सहाबी रसूल
3 सहाबा आए, उन्होंने आके नबी पाक के दरवाजे पर दस्तक दी, या रसूलुल्लाह हम आपसे बात करना चाहते हैं। उम्महातुल मोमिनीन ने बताया कि वो घर में नहीं है, तो पता नहीं कहाँ गए हैं, घर में नहीं है मौजूद। तो उन तीनों लोगों ने नबी पाक के दरवाजे के आगे ही खड़े होकर वहीं पर बातें करनी शुरू कर दी कि लो भाई, बात यह है कि हमने आज के बाद अहद करना है कि इस्लाम में आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, तकवा में आगे बढ़ना है। कैसे आगे बढ़ना है? कहते हैं कि असल बात यह है कि रात को अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, रात का इबादत, ज़ुहद। हम ऐसा करेंगे, मैं तो ये करूँगा कि आज के बाद सारी रात जागा करूँगा और दिन के वक्त जो है वो सो लिया करूँगा, लेकिन रात को मैं कभी भी नहीं सोऊंगा, मैं वादा करता हूँ, कसम खाता हूँ। दूसरे ने ये कसम खाई कि शादियां करने से दुनिया की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। मैं आज के बाद अहद करता हूं, कसम खाता हूं कि शादी नहीं करूंगा। तीसरे ने यह अहद किया कि मैं सारा साल रोजे रखूंगा, क्योंकि रोजा तकवा की एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। उससे इंसान में जो तकवा और तहारत पैदा होती है वो सिर्फ रोजेदारी महसूस करता। तो कहते हैं मैं सारे साल रोजे रखूंगा। ये बातें तीनों अहद करके दरवाजे के आगे खड़े होकर अहद करके चले गए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर आए, उम्महातुल मोमिनीन ने बताया या रसूलल्लाह यहाँ पर कोई 3 लोग आए थे, आपसे मिलना चाहते थे, ये बातें कर रहे थे आपकी अदम मौजूदगी में। जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बातें सुनी, जब रहमतुल लिल आलमीन ने ये बातें सुनी, आपने फौरन जाकर मस्जिद नबवी में सहाबा को इकट्ठा करके कहा, लोगों सुनो, कोई लोग हैं, कोई साथी हैं, कोई वो मुझे मिलना चाहते थे, घर आए हैं, मैं मिल नहीं सका उनको, वो मेरे दरवाजे पर खड़े होकर ये बातें करके गए हैं। सुन लो, तुम में से कोई मुझसे आगे नहीं बढ़ सकता, कोई मुझसे आगे नहीं बढ़ सकता, अल्लाह को मुझसे ज्यादा प्यारा नहीं हो सकता। याद रखो, मैं रात का कुछ हिस्सा सोता भी हूँ, कुछ हिस्सा इबादत भी करता हूँ, साल के कुछ दिन मैं रोजे भी रखता हूँ और कुछ दिन मैं नागा भी करता हूँ, रोज़ा नहीं भी रखता। और इसी तरह से मैंने शादियाँ भी की हैं, शादी मेरी सुन्नत है, जो इससे राह फरार इख्तियार करे, जो इसको तर्क करे, वो हम में से है ही नहीं। सुन लो, ये सारे काम मैंने किए हैं, तुम मुझसे आगे नहीं बढ़ सकते। ये काम छोड़कर या इनमें इजाफा करके या इनमें कमी करके तुम मुझसे आगे नहीं बढ़ सकते। अल्लाह ताला ने कुरान में साफ कहा, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह। मिर्जा कादियानी दज्जाल कहता है, मुझे ये कहा गया है, मुझे ये इल्हाम हुआ है, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह। कौन सा शरफ है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो तुमने चोरी करने की कोशिश नहीं की, जो छीनने की कोशिश नहीं की। तुम्हारे साथ बर्बरियत अगर हुई है तो इस वजह से हुई है, तुमने नबी पाक की जगह पर इस कादियानी दज्जाल को खड़ा करके कोशिश की है इनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिप्लेस किया जाए। ये होने नहीं दिया मुसलमानों ने जूते मारे तुम्हारे मुंह पर कि तुम हमारे महबूब नबी को रिप्लेस करना चाहते हो इस कादियानी दज्जाल के साथ। कल रात को मैंने बात सुनाई, कल सुबह भी बात सुनाई कि ना तो जिंदगी में कोई इखलाक है इसका, इन्नका लअला खुलुकिन अजीम का मवाजना करने वाला, मुकाबला करने वाला, ना तो जिंदगी में इसका कोई हाल है। कहता है कि जो गाली तू देगा वही मुझसे सुनेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने जिंदगी में कभी किसी को गाली नहीं दी। ये कहता है जो गाली तू देगा वही मुझसे सुनेगा। सूफी अब्दुल्ला गजनवी को 400 गाली दे के कहता है, अगर हया मेरे रास्ते में रुकावट ना होता, शर्मो हया ना मुझे आ रही होती, मैं तुझे गालियों से फना कर देता। हालांकि 700 गाली दे चुका है पीछे, गालियां दे दे के पूरे सफे भरे हुए हैं। आज़ैतनी खुबसन फलस्त बिसादिकिन इल्लम तमुत बिल खिज़्य या इब्नुल बगा। ओ कंजरी के बच्चे, ओ फाहिशा औरत के बच्चे, तूने मुझे अपनी खबासत से बहुत अजियत दी है, बस मैं अगर सच्चा नहीं हूं, अगर तू जिल्लत की मौत ना मरा। गालियां दे दे के मर गया। और कहते हैं कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का बुरूज है, जिल है, इसलिए आपके साथ बर्बरियत हुई है, इसलिए आपके घर जले हैं, इसलिए आपके सर कटे हैं, क्योंकि आपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसा बंदा बनाकर लोगों को पेश करने की कोशिश किया कि ये भी नबी पाक की ही दूसरी बेस, नबी पाक का ही बुरूज है, नबी पाक का ही जिल है, ये नबी पाक ही दोबारा आए, ये नबी अलैहिस्सलाम ही दोबारा आ गए माअज़ल्लाह। आखरीन मिनहुम लम्मा यलहकू बिहिम की वजह से ये देखो नबी पाक ने दोबारा
ज़हूर फरमाया है, नबी पाक दोबारा बेइज्जत हो गई। किस शख्स के बारे में? जिस जैसा हकीर इंसान अल्लाह की धरती पर आपको नजर ही नहीं आएगा, जिस जैसा गंदे इखलाक वाला आदमी आपको अल्लाह की धरती पर नजर ही नहीं। चलो किसी ऐसे बंदे को पेश करते जो बा इखलाक होता, बा किरदार होता, उसकी सीरत पर, उसके किरदार पर, उसके इखलाक पर, उसकी गुफ्तार पर कोई बंदा उंगली ना उठा सकता कि हाँ इस बंदे ने कभी किसी को जरर नहीं पहुंचाया अपनी जुबान से, अपने बद इखलाकी से, अपने किरदार से। ये तो लोगों की बेटियों को ब्लैकमेल करने वाला, लोगों की बेटियों का रिश्ता मांग कर उनको ब्लैकमेल करने वाला, जुट डाल के उनको कहता है मुझे खुदा ने कहा है कि तेरे साथ रिश्ता जंबानी किया जाए, तू मुझे बेटी का रिश्ता देगा तो तेरे जमीन के कागजों पर दस्तखत करूंगा, वरना नहीं करूंगा। जमीन के कागजात पर दस्तखत करवाने आया अहमद बेग, उसको जुट डाल लिया कि तेरे कागजों पर दस्तखत तब होंगे तू मुझे बेटी का रिश्ता दे। अपनी बेटी का रिश्ता देने लगा मुबारका बेगम का मोहम्मद खान ऑफ मलेर कोटला को। शाहजी शिया था वो भी, मोहम्मद खान और मलेर कोटला वो भी, और उनका बेटा, शियों के घर में दोनों बेटियां ब्याही हैं। रिश्ता करने लगा तो कहता है कि आज ही ये तहरीर लिखी होनी चाहिए। कौन सी तहरीर? 2 साल की तुम्हारी जो आमदन है ना, जागीर तुम्हारी, उनके बाप को मुरब्बे मिले हुए थे अंग्रेजों से, तुम्हारी जितनी जागीर है उसकी सारी आमदनी वो हक महर के तौर पर देनी है और उसकी शरई दस्तावेज लिखवानी है। ये नहीं कि जुबानी कलामी, ना ना ना, तहरीर लिखवानी, स्टाम्प पेपर पे दस्तखत करके लिख के लाओ और आज ही लाओ अगर तुम ये रिश्ता चाहते हो। नहीं तो खत्म। इस शर्त पर रिश्ता दिया जाएगा, इस शर्त पर रिश्ता दिया जाएगा कि तू मुझे आज ही वो तहरीर लिख कर ला के दे, 2 साल की जागीर अपनी, उसकी आमदनी लिख कर दे मुझे, और इस शर्त पर मैं अहमद बेग तेरे कागजों पर दस्तखत करूंगा कि तू मुझे बेटी का रिश्ता दे। इस शख्स का किरदार, इस शख्स का इखलाक, इस शख्स की गुफ्तार कितनी मैं बयान करूं। सुबह से लेकर शाम तक यही लोगों को सुनाते रहते हैं कि अल्लाह की धरती पर गालीबाज, बद इखलाक, बद सीरत, बद किरदार इंसान आपको दिखाई नहीं देगा। और हमारे महबूब नबी जैसा हसीनो जमील, उन जैसा साहिब किरदार, साहिब सीरत आपको दिखाई नहीं देगा। चश्मे फलक ने देखा ही नहीं है उन जैसा, जिनको दुश्मनों ने भी इतना इतना कहा, इतना इतना जुल्म किया, आपने सब्र का पैकर बनकर दिखाया। आपने किसी को गाली नहीं दी। ये गालियां देने वाला, फिर जिंदगी की मिसाल दी है मैंने कि ये किरदार था, ये इखलाक था। आखिरी मिसाल मौत की दे देता हूँ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे ना सैयदना सिद्दीक़ अकबर, जब नबी पाक फौत हुए तो आपके पेशानी पर बोसा दिया, माथे को चूमा और कहा मेरे महबूब नबी, अल्लाह आपको 2 मौतें नहीं देगा। नबी अलैहिस्सलाम की रूह जब परवाज की है, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा कहती हैं कि ऐसी खुशबू फैल गई जो मैंने कभी जिंदगी में पहले महसूस ही नहीं की। उम्मे सलमा कहती हैं मैंने आपकी छाती पर हाथ रखा, उस हाथ से खुशबू सालों तक रही है, गई नहीं मेरे हाथ से खुशबू। जब भी मैं वो हाथ अपने नाक के करीब करती उसमें ऐसी खुशबू आती थी जो उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम के सीना अथर को मैंने जाके हाथ से छुआ तो वो मेरे हाथ में लग गई खुशबू, वो गई नहीं। ऐसा खुशबूदार रूह, ऐसी पाक रूह। सोमवार वाले दिन जोहर के वक्त आपकी वफात हुई है, मंगल वाले दिन जनाजा शुरू हुआ है, बुध वाले दिन जाके तदफीन हुई है, तीसरे दिन जाके तदफीन हुई है नबी पाक की। तुम्हारा मिर्जा कादियानी वो है 26 मई 1908 को सवेरे 10 बजे मरा है, 3 बजे इसको बर्फ लगानी पड़ गई है। रात को बार बार लड़के मैसेज कर करके पूछ रहे थे टाइम दस्यो बर्फ कितने बजे लानी पड़ी, 3 बजे बर्फ लगानी पड़ी ट्रुथ सीकर। 10 बजे मौत हुई मिर्जा कादियानी की, 3 बजे पिछले टाइम बर्फ लगानी पड़ गई है। क्योंकि का जवाब आगे आप खुद सोच लें, क्यों बर्फ लगानी पड़ी है। 5 घंटे के अंदर अंदर इसकी लाश ने मुश्क मार दी थी, जिसका सारी रात दस्त पे दस्त आते रहे, पेशाब पे पेशाब करता रहा, पेट सारा खाली हो गया। उसके बावजूद उसकी लाश से बदबू आ रही है। बर्फ लगा के इसको संदूक में बंद करके ले जाके कादियान में मिट्टी के नीचे दबाना पड़ा। इस बदबख्त को अगर तुम कहते हो कि ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही दोबारा आए हैं, माज़अल्लाह, तो मुसलमान अगर तुम्हारे साथ बर्बरियत करते हैं, तुम्हारे सर काटे जाते हैं, तुम्हारे घर जलाए जाते हैं, तो अपनी करतूत तो देखो, अपने करतूत तो देखो।
तुमने एक नज़म लिखी है रसूल कदनी, उसमें लिखा हुआ है कि अगर पीर अब्दुल कादर जिलानी होते ना, जिनके लोग 11वीं वाला पीर कहते हैं, गौसे आजम भी कहते हैं कुछ लोग उनको, पीर अब्दुल कादर जिलानी होते तो वो मिर्जा कादियानी दज्जाल के पैरों की खाक को अपनी आंखों का सुरमा बनाते माज़अल्लाह। इससे गंदी गालियां और तुम क्या दे सकते हो? तुम्हारे से जो कुछ हो सका तुमने अपनी जुबान से गालियां दी हमारे इस्लामी मुकद्दसात को, तो मुसलमानों से जो कुछ हद से हुआ उन्होंने हद से कसर निकाल ली। यही बात मिर्जा कादियानी ने अंजामे आतम में लिखी हुई है मसीह इब्न मरियम के बारे में कि यसूल मसीह यहूदियों को जुबान से कुछ कहते थे, वो माज़अल्लाह हद से कसर निकाल लेते थे। ये बकवास लिखी हुई है तो झूठ लिखा हुआ, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। यीशु मसीह को किसी बंदे ने उनकी किताब के मुताबिक भी किसी ने उनके ऊपर कोई यानी हमला नहीं किया, फिजिकल जो असाल्ट है नहीं मौजूद वहाँ पर, लेकिन झूठ बोला हुआ है। पर मैं ये सच बयान कर रहा हूँ कि जब तुमने अपनी जुबान से, जुबान की कैंची से इसको कैंची की तरह चलाकर गालियाँ दी इस्लामी मुकद्दसात को, इस्लामी मुकद्दस हस्तियों को, मुसलमानों ने हाथ से कसर निकाल ली होगी, इसलिए बरबरीयत हुई है जी। भट्ट साहब ए जे तुहाडे सवाल दा जवाब जी, हुण कर लो अगला सवाल। हाँ जी शाह साहब, वो मैं पूछ रहा था कि ये जो नज़ुलुल मसीह में आपने बताया हवाला लिखा हुआ, इसका ब्राइनियम का रेफरेंस, ब्राइनियम का कोई रेफरेंस दिया इसने? मैं देख लेता हूँ आमिर भाई। मैं आपने मेरे जवाब वही दिया आमिर भाई जो मैं इसको देता। मैं इसको ये कहता कि तुम्हें कत्ल इसलिए किया जाता है क्योंकि जब तुम किसी आदमी के मुंह पे बैठ के कहोगे ना कि मेरी पेशगोई सच्चाई की है कि तुम्हारी माँ का नाम लेके, अगले की माँ का नाम लेके कि वो मेरे निकाह में आएगी, तो अगला बंदा तुम्हें कत्ल नहीं, चपेट नहीं मारेगा तो और क्या करेगा वो? मुझे बताएं आमिर भाई के रूबरू बैठ के कोई बंदा भट्ट साहब को कहे कि भट्ट साहब, बड़ी माजरत है भट्ट साहब से, कि उनकी वालदा माजिदा का नाम लेके कहे कि वो मेरे निकाह में आएगी। भट्ट साहब गैरतमंद अगर होंगे तो एक थप्पड़ उसके कान के नीचे मारेंगे, नहीं होंगे गैरतमंद तो नहीं करेंगे। बहरहाल ये कहता है जी बड़े बेगैरत लोग हैं जी, फिर कहते हैं ये लोग, फिर हमें गालियां क्यों देते हैं? ये कोई बड़ा बात है। हालांकि कुरान की आयत है अमर भाई के रसूल की अज़वाज से ये निकाह नहीं हो सकता, बंदा सोच भी नहीं, ये कोई बड़ा बात है। अच्छा, ये कहता है आमिर भाई के इसने ये सारी बातें जो मैंने कही है ना, इनको अपने ज़हन में बिठाएं सारे सारे। ब्राइन अहमदिया सफ़ा जो सुनने वाले, हाँ हम बताएं ब्राइन अहमदिया का कौन सा सफ़ा है? वाला दिया जी, सफ़ा 558। 558 आप जरा खोलें ब्राइन अहमदिया का 558, वो आप रूहानी खजाइन का 558 और ब्राइन अहमदिया का 558 दोनों को जरा ध्यान से चेक करना, क्योंकि सफ़ा आगे पीछे हो जाता है। आपने किताब का 558 खोलना देखें ना, लेकिन इसको इसने खुद ही पे, जब इसने दावा ही मैं बात काट रहा हूँ बड़ी माजरत है, लेकिन जब ये खुद ही दावा पेशगोई का कर रहा है जी, तो फिर इसी को ऐसे ही लेके चलते हैं। नहीं वो तो ठीक है, वो झूठ तो बोला होगा जरूर। मैं अभी आपको दिखाएंगे, आप 558 खोलेंगे ना तो वहाँ पर ये पेशगोई की शक्ल होगी नहीं, क्योंकि अगर ये 1884 में इस तरह की कोई पेशगोई या इन लफ्ज़ों से करता तो शायद वो जो इसके साथ नरमी बरती गई है वो ना बरती जाती है। तो वहाँ पर कुछ और ही बात लिखी हुई होनी चाहिए, क्योंकि हर दफ़ा इसने ऐसे किया, सारी बातें झूठ लिखी हुई आगे जाकर। अपनी किताबों, जो बंदा अपनी इबारतों के साथ हेराफेरी करने से बाज नहीं आता, वो दूसरों की इबारतों, दूसरी की किताबों से, कुरान और हदीस से हेराफेरी करे तो कौन सा ये कोई अजीबोगरीब बात है? हदीसों में आया है कि महदी आएगा तो उस पर कुफर के फतवे लगेंगे, कौन सी हदीस में? किसी हदीस में कहता है जी हाजा खलीफतुल्लाह अल महदी, और ये हदीस किस कदर कवी है कि जब बुखारी में आई हो। हाँ लो कुछ भी नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ कि कुरान और हदीस पर भी झूठ बोले हैं, उलमा की किताबों पर झूठ बोले हैं कि मौलाना गुलाम दस्तगीर कसूरी ने मेरे साथ मुबायला किया है फलानी किताब में, वहाँ पर कुछ भी नहीं, मुबायला लिखा ही नहीं हुआ। कुरान, मौलाना इस्माइल अली गढ़ी ने मेरे साथ जी
कुरान ये जिसको कह रहा हूं कि- खातिमुल खुलफा कहता है उसको जी हाँ जी। हदीसों में मसीह हो, ये कोई भला बात है जी? अपने पास से घड़ घड़ के झूठ बोले हुए हैं किताबों में। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि चलो दूसरी की किताबों से तो हेराफेरी की, अपनी किताबों से हेराफेरी बंदा करता है, अपनी तहरीरें से हेराफेरी करता है और कहता है मैंने फलानी किताब में आज से इतने साल पहले इब्राहिम अहमद में ये लिखा था, फलां किताब में वो लिखा था। इतना तो बंदे को देख लेना चाहिए कि चलो जी दूसरों ने किताबें बदल दी, आपके साथ फ्रॉड कर दिया, बुखारी के नुस्खे गुम गए, वो जिस बुखारी के नुस्खे में ये लिखा हुआ था हाजा खलीफतुल्लाह अल महदी, वो दुनिया से उसको- नापैद हो गया 100 साल के अंदर अंदर। यार ये तो इब्राहिम अहमद तो तुम्हारी अपनी किताब है। बड़ी माजरत है, बड़ी माजरत है आमिर भाई, आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन क्योंकि इल्मुल हदीस से मुझे शगफ है ना जी, चूंकि तो इल्मुल हदीस से मेरे साथ इस कदर यानी जाहिल कहूँगा तो ये माइंड करेंगे, यानी ये कोई भला बात है कि एक नुस्खे में नहीं थी। आपको पता है कि मेरी बात का बेहतर आमिर भाई कि उस वक्त किताबत मोहम्मद इब्न इस्माइल बुखारी साहब के दौर में किताबत शुरू हो चुकी थी, वो किताब से नुस्खा नकल हो रहा था, इनसे रुवाते हदीस रवायत कर रहे हैं। रुवात ने इनसे क्यों नहीं ये हदीस रवायत की है, मेहदी के मुतल्लिक ये वाली हदीस क्यों नहीं रवायत की है? ही नहीं है उनकी नुस्खे में, है ही नहीं, उनसे रवायत ही नहीं की है। इनको क्या पता है? मेरे पास बुखारी की पूरी सनद पड़ी हुई है कि इमाम बुखारी ने जब बुखारी शरीफ लिखी तो कैसे लिखी, किसको लिखवाई। 2 शागिर्द थे उनके, उन शागिर्दों से किसने लिखी, फिर उनसे किसने लिखी, फिर उनसे, जब ये छापे खाने नहीं होते थे, हाथ से लिखे जाते थे कलमी नुस्खे, तो वो पूरी सनद मेरे पास पड़ी हुई है। जिस मर्जाई को जरूरत होगी मैं पूरी सनद पेश कर दूंगा, आज तक की जो छप रही है बुखारी, यहाँ से लेकर इमाम बुखारी तक पूरी सनद मौजूद है। और झूठ बोलते हैं और कहते हैं बुखारी का नुस्खा नापैद हो गया। जिधर ये जिल्द 1 के अंदर सफीर भाई क्या नाम है आमिर भाई, ये इसको ना जिल्द 1 के अंदर ये कहता है सफा नंबर 666 के ऊपर इब्राहिम अहमदी ऐसा 4 है, कहता है जी तुमको तो वो करना चाहिए जो मैंने फरमाया है, और आगे वो अरबी में इबारत है कि उशकुर नेमती राई, तो आगे बेगैरती इसने की है। ए दाऊद खुल्क अल्लाह के साथ रुफ और एहसान के साथ मामला कर, और सलाम का जवाब एहसान के तौर पर दे, और अपने रब की नेमत के लोगों के पास जिक्र करके मेरी नेमत का जिक्र है कि तूने उसको कबल अज़ वक्त पाया, आज तुझे हिफ्ज़ अजीम है, तू मुहद्दिस अल्लाह है, तुझे मैं मावा फारूकी है तुझे, सलामुन अलैका या इब्राहिम इन्ना का ये अच्छा है तेरे पर सलाम। अच्छा, इसने ये बीच में अपने इल्हाम में बस ये लिखा हुआ है जी, बस अपनी ये पेश गोई में कि खुदा ने मुझ पे इल्हाम किया है उशकुर नेमती, और ये बस इसका आगे इसने कोई बात नहीं की है कि ये शुक्र कर मेरी नेमत का, आगे क्या लिखा हुआ है? रईतु खतीजा थी। हाँ, नहीं वो उर्दू में इन्ना का यौम। अच्छा, इसका इसने आगे उर्दू तर्जुमा करता होगा जी, क्योंकि इसने आगे उर्दू भारत शुरू कर दिया है, दाऊद आगे वहाँ से शुरू की है, और यानी इस नबी करीम की मुताबिकत का नतीजा है कि, और बकिया तर्जुमा यह है कि खुदा तुझको तर्क नहीं किया और तुझ पर नाराज नहीं हुआ, तुझे हमारा सीना नहीं खोला गया। क्या चाहिए इसने अपने बारे में अलम नशर अला का सदरक काट दिया तो तेरा सीना नहीं खोला गया, क्या हमने हर बात में तेरे लिए आसानी नहीं की, क्या तुझे बहुत बैतुल फिक्र और बैतुल जिक्र साबित नहीं किया, अता किया, और जो शख्स बैतुल जिक्र है ये वो आगे पीछे से सारी। अच्छा, ये 668 सफा 668 आपने बताया, 666 जी, 666 यानी 666 जी, इसका इसने तर्जुमा नहीं किया आमिर भाई। एक सेकंड में खुद देखते हैं। मतलब पेशगोई का तो यहाँ पर जिक्र ही कोई नहीं ना, आपको पेशगोई पहली पेशगोई तो उसने खुद 1886 में लिखी है। मैं आपको बता 20 फरवरी 1886 को बहुत सारी बीवियां दूंगा। हाँ, 20 फरवरी 1886 को उसने खुद लिखा है कि ये मेरी पहली पेशगोई है, तो उससे पीछे जाके कैसे कह सकता है कि ये मेरी पेशगोई है? कह दिया नहीं, मुझे बता दें। कह दिया ना जी, मतलब ठोक दिया मेरे साहब ने। अपनी बात को फिर गलत कह रहा है ना, जब वो 20 फरवरी 1886 की पेशगोई को कहता है कि ये पहली पेशगोई है। यार हमें भाई 30 साल पुराना मामला कौन याद रखता है? मेरे साहब ने कहा वो पट के रखो, देखी जाएगी फिर। हाँ, ये बात हुई है। मतलब 2 साल पहले वाली बात को कैसे पेशगोई करार दे सकता है? झूठ है। नज़ुलुल मसीह में, हकीकतुल वही में ऐसे ही इसने गढ़ गढ़ के झूठ लिखे हुए हैं। हकीकत ये है कि वो बातें अपनी किताबों के साथ मॉडिफिकेशन है, अपनी किताबों के साथ हेरा फेरी इसने की है।
अब नज़ुल मसीह में ना जी इसने एक कहा हुआ कि ये 1880 के अंदर 1880 के अंदर इसने पेशगोई नंबर 26 के साथ डेट लिखी हुई है। अब यहाँ पे ये 1880 पेशगोई नंबर 26 है अब ये इसकी, जो 1880 में आ रही है।